Hello students, I am Mitali Tillawala, your biology teacher, and welcome to my channel Fearless Studies. So as we have completed our previous lecture, and that is all about the pollination, and the last topic of pollination is about pollen pistil interaction. So after pollen pistil interaction, fertilization will take place, and it is also known as a double fertilization. Here you can see double fertilization. Why it is known as double fertilization, you will know here. Okay, so in first point you can see, once the pollen tube enter in one of the synergy cell through filiform apparatus, two male gametes are released. How two male gametes are formed? With the help of mitotic division. With the help of mitotic division, the generative cell divide in two male gametes and are released in the cytoplasm of synergy cells. Okay, now there are two male gametes. One male gamete is fused with egg cell and complete the syngamy and form zygote, which is diploid in nature, and it will further develop in embryo. The other male gamete fuse with two polar nuclei of the central cell and call it, and it is also known as a triple fusion. Why triple fusion? Because one nuclei from one male gamete and two nuclei from two polar nuclei. So three nuclei are fused, and it is also known as a triple fusion. Okay, and after triple fusion, that nucleus is known as primary endosperm nucleus, PEN, and it is triploid in nature. So after triple fusion, the nucleus is known as primary endosperm nucleus, and that central cell is known as the primary endosperm cell, which is also known as PEC. And after developing, it will form endosperm. Okay, so here you can see one is syngamy, that is the fusion between male gamete and egg cell, and the triple fusion, that means the male gamete and two polar nuclei, both fusion are doing simultaneously, and it is known as double fertilization. Here you can see in figure, one male gamete is fused with egg cell, second male gamete is fused with polar nuclei. Okay, so here you can see egg is formed in zygote, and the triple fusion will takes place here and form endosperm. Okay, so this is all about the double fertilization. After fertilization, some post fertilization events are takes place, and that are endosperm and embryo development. Once zygote is formed, zygote is developed in embryo, and further embryo is also developed until it will mature. Okay, and endosperm is also developed. Why endosperm is developed? Because endosperm is there for nourishing embryo. Okay, and the second device is maturation of ovules into seeds and ovary into fruit. As you know, seed and fruit are the final end product of the sexual reproduction, so it is the final event or post fertilization event we have to consider. Okay, so first one is endosperm PEC, that means the primary embryonic cell are divided repeatedly and form triploid endosperm tissues. As you know, simply हमें पता है कि कोई भी सेम तरह के सेल्स है वो डिवाइड होके ग्रुप ऑफ सेल्स बनता है, एंड दैट ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज अ टिश्यू. हियर पीईसी जो है वो डिवाइड कर रहा है, माइटोटिकली डिवाइड होके एंडोस्पर्म टिश्यूज बना रहा है. और एज यू नो that cell is triploid in nature, so the tissue is also triploid in nature, and it contain food materials for what? Nourishment of embryo. Okay, so here in this first point you can see karyokinesis and cytokinesis both will take place. Okay, but in the case of pen, that means only and only nucleus. Okay, so nucleus जो है उसका सक्सेसिव डिवीजन होके फ्री न्यूक्लियाई बनता है. हमने पहले भी पढ़ा है कि जब भी कोई डिवीजन होगा और उसमें सिर्फ और सिर्फ कैरियोकाइनेसिस होगा, साइटोकाइनेसिस नहीं होगा, एट दैट टाइम जो न्यूक्लियाई फॉर्म होगा वो फ्री न्यूक्लियाई है. ओके, तो हियर यू कैन सी फ्री न्यूक्लियाई फॉर्म हो रहा है, और वो जो नंबर्स है कितने न्यूक्लियाई फॉर्म हो गए उसके नंबर्स भी वेरीज है, एंड उसकी वजह से जो भी फॉर्म होगा, जो ये स्टेज है उसको हम बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म स्टेज. ओके, हियर इज वन एग्जाम्पल. यू कैन सी द कोकोनट, दैट ग्रीन पोर्शन इज एक्सोकार्प, दैट मीन्स द आउटर वॉल, द mesocarp, that means the middle wall, and the endocarp, that means that brown color structure you can see here, that is the endosperm endo
carp. Okay, now you can see the white kernel. Okay, that white portion or coconut meat is endosperm. Okay, that you can understand that PECs mitotically divide and form a cellular endosperm, but the water of the coconut, that is the liquid endosperm. Liquid endosperm, that means it is free nuclear endosperm. Here you can सी लिक्विड एंडोस्पर्म, वो जो है वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है. हियर आई एम राइटिंग ऑल्सो. ओके, example, coconut water from tender coconut is free nuclear endosperm. coconut water क्या है? free nuclear endosperm है, which is made up of a thousands of nuclei, and white kernel, that means the coconut meat, is actually endosperms. okay, now cell wall formations occur, मतलब कि एंडोस्पर्म्स है, ये वाला वाइट मीट है, वाइट कर्नल है, उसमें तो सेल वॉल होगा, बट जो ये फ्री न्यूक्लियाई है, तो फ्री न्यूक्लियाई में भी कभी ना कभी तो सेल वॉल फॉर्म होना है. तो एट दैट टाइम जब सेल वॉल फॉर्म होगा देन एंडोस्पर्म बिकम सेल्यूलर. इसीलिए आपको पता होगा कि जिसमें भी ये वाइट पोर्शन ज़्यादा होगा ना, उसमें कोकोनट वाटर का लेवल कम होगा. क्यों? क्योंकि वो जो कोकोनट वाटर है उसमें सेल वॉल फॉर्म हो चुकी होगी, और सेल वॉल फॉर्म होने की वजह से वो जो फ्री एंडोस्पर्म्स है इट विल बिकम cellular. okay, here endosperm may be completely consumed by developing embryo. मतलब कि जो एम्ब्रियो है वो उसको completely कंज्यूम कर लेता है. कब से? बिफोर द मैच्योरेशन ऑफ सीड, मतलब सीड मैच्योर होने से पहले ही उसको कंज्यूम कर लेता है. तो उसका एग्जाम्पल है पिया, ग्राउंडनट एंड बीन्स. प्लीज़ एग्जाम्पल याद रखना. और दूसरे ऐसे होते हैं कि मैच्योर सीड होने के बाद, सीड को मैच्योर होने के बाद भी उसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट रहते हैं, और उसको कब यूज़ करते हैं? जब सीड को जर्मिनेट करना है. तो उसके एग्जाम्पल में कौन आएगा? कैसर्स एंड कोकोनट. okay, after endosperm, that is the embryo. one of the most important point, embryo मतलब कि जाइगोट है, जाइगोट का डेवलपमेंट होके एम्ब्रियो बनेगा. और हमें पता है कि जाइगोट कहाँ पे फॉर्म हो रहा है? माइक्रोपायरल एंड पे. तो जाइगोट में से एम्ब्रियो भी कहाँ पे फॉर्म होगा? दैट इज माइक्रोपायरल एंड. हियर आई एम राइटिंग दैट डेवलप्ड एट माइक्रोपायरल एंड ऑफ एम्ब्रियो सेक फ्रॉम जाइगोट. ओके, जाइगोट डिवाइड आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म फॉर्म फॉर एश्योर न्यूट्रिएंट. जब तक एंडोस्पर्म फॉर्म नहीं होगा ना, सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म फॉर्म नहीं होगा, तब तक जाइगोट डिवीजन स्टार्ट नहीं करेगा. क्यों? क्योंकि उसको भी पता है कि अगर वो डिवाइड करेगा तो उसको उसके लिए नरिशमेंट चाहिए होगा, तो उसको प्रॉपर नरिशमेंट मिल सके, इसीलिए वो वेट करता है तब तक जब तक कि एबंडेंट अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म फॉर्म हो जाए. ओके, जो एम्ब्रियो डेवलप होने की प्रोसेस है इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ एम्ब्रियोजेनी. हियर इन दिस फिगर यू कैन सी जाइगोट इज माइटोटिकल डिवाइडेड एंड form two cell stage. okay, then after here you can see globular embryo. why it is known as globular? because here at the end portion you can see the globular structure. okay, so that is the globular embryo. after globular embryo it is further developed into heart-shaped embryo, and that heart-shaped embryo is further developed into the mature embryo. you can see here in the figure. okay, globular embryo, heart-shaped embryo and the mature embryo. here you can see radicle and plumules. radicles जो है उसमें से root develop होगा, और plumules जो है उसमें से above ground portion, that means the stems, leaves are developed from the plumules, and cotyledons you know well. okay, so here you can see similar in both seed of monocot and dicot. you know monocots and dicots जो है उसके सीड्स भले ही डिफरेंट होंगे, बट अगर उसका एम्ब्रियोनिक स्टेज देखने जाए तो दोनों में सिमिलर रहेगा. और कैसे डेवलप होगा? तो जाइगोट, दिस इज द जाइगोट, देन सेकंड वन इज प्री एम्ब्रियो. जाइगोट में से प्री एम्ब्रियो फॉर्म हुआ, प्री एम्ब्रियो में से ग्लोब्यूलर शेप में से हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो, एंड देन आफ्टर द मैच्योर एम्ब्रियो विल फॉर्म्ड. अभी यहाँ पे आपको डाइकोटिलेडन्स एम्ब्रियो एंड मोनोकोटिलेडन्स एम्ब्रियो का डिफरेंस बताया है कि डाइकोटिलेडनस एम्ब्रियो है तो उसमें एक एम्ब्रियोनिक एक्सिस रहेगी, और उसमें कोटिलेडन्स हो गए, टोटल 2 कोटिलेडन्स हो गए. ओके, तो वो जो कोटिलेडन्स है उसके
कोटिलेडन से उसके अकॉर्डिंग देर आर टू टाइप्स ऑफ एम्ब्रियो, एपिकोटाइल एम्ब्रियो एंड हाइपोकोटाइल। एपिकोटाइल दैट मीन्स जो एक्सिस है, एक्सिस जो है अगर वो कोटिलेडन्स के लेवल से अप हुई तो इट इज़ नोन एज द एपिकोटाइल, एंड हाइपो दैट मीन्स उससे लो होना, दैट मीन्स एक्सिस जो है वो कोटिलेडन्स के लेवल से लो हुई तो दैट इज़ नोन एज द हाइपोकोटाइल। हियर यू कैन सी the this line you can see, and from this line to this whole structure is known as the cotyledon. Okay, that is the plumules, and the down portion is the radicle. This is the hypocotyle and this is the epicotyle. Now you can see अगर ये जो लेवल है, ये जो लेवल है लाइन से ऊपर है, ओके, दैट मीन्स कोटिलेडन से ऊपर का जो लेयर है ये जो है कोटिलेडन से ऊपर है तो इसीलिए उसको एपिकोटाइल बोलते हैं। बट अगर ये एक्सिस की बात करें तो ये एक्सिस कोटिलेडन से नीचे है तो इसीलिए उसको बोलते हैं हाइपोकोटाइल। ओके, नाउ हियर यू कैन सी टर्मिनेट विद प्लूम्यूल्स। नाउ यू कैन सी एपिकोटाइल है तो एपिकोटाइल प्लूम्यूल्स के साथ टर्मिनेट होगी, जबकि हाइपोकोटाइल्स है तो नीचे रेडिकल्स के साथ टर्मिनेट होगा। तो यहाँ पे यू कैन सी टर्मिनेट विद रेडिकल। रेडिकल इज ऑल्सो नोन एज रूट टिप एंड रूट टिप इज कवर्ड विद रूट कैप। जब मोनोकोटिलेडनस एम्ब्रियो की बात आएगी तो उसमें एम्ब्रियोनिक एक्सिस तो रहेगी बट कोटिलेडन एक ही रहेगा, और वो जो कोटिलेडन है इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ स्क्यूटेलम इन द ग्रास फैमिली। ओके, याद रखना कोटिलेडन ही स्क्यूटेलम है बट विच इज़ स्पेसिफिक फॉर ग्रास फैमिली। ओके, अभी यहाँ पे क्या होगा कि आपने देखा है कि लोअर साइड पे यहाँ पे आपने देखा कि रूट टिप है और उसके ऊपर रूट कैप है, तो यहाँ पे रूट टिप और रूट कैप के ऊपर भी एक कवरिंग होगा जिस अनडिफ्रेंशिएटेड कवरिंग होगा, उसको बोलेंगे कोलेराइसा। एंड वन मोर थिंग इज सूट एपेक्स एंड फ्यू लीफ, मतलब कि जो प्लूम्यूल्स है प्लूम्यूल्स के ऊपर भी एक कवरिंग होगा जिसको बोलते हैं होलोफोलियर स्ट्रक्चर विच इज़ ऑल्सो नोन एज अ कॉलेप्टाइल। हियर यू कैन सी इन द मोनोकॉट सीड। ओके, here you can see the radical structure, root tip, and after that there is a coleryza. Okay, and here you can see the shoot apex, and shoot apex is covered by the coleoptile. Okay, so you have to understand that there are two main structure, coleryza and coleoptile, present in the monocotyledon embryo. Next is seed. ओके, एंजियोस्पर्म दैट इज़ फ्लावर बियरिंग प्लांट। एंजियोस्पर्म की जो फाइनल प्रोडक्ट है फर्टिलाइजेशन के बाद दैट इज़ द सीड। ओके, एंड वो जनरली कहाँ पे फाउंड होता है तो इनसाइड द फ्रूट और विच इज़ द मैच्योर्ड ओवरी। सीड इज़ मेड अप ऑफ व्हाट, तो सीड कोट होगा, कोटिलेडन हो गए एंड द एम्ब्रियोनिक एक्सिस। कोटिलेडन एंड एम्ब्रियोनिक एक्सिस इज ऑलरेडी देयर बट सीड कोट इज ऑल्सो प्रेजेंट। ओके, नाउ कोटिलेडन। कोटिलेडन हमेशा थिक एंड स्वॉलोन होते हैं बिकॉज इट इज़ फूड रिजर्व, और फूड रिजर्व अगर अच्छे से नहीं होगा तो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट भी अच्छे से नहीं होगा। एग्जाम्पल लेग्यूम्स। नाउ mature seed are of two type. First one is non-albuminous and second one is albuminous. Non-albuminous that means कि उसमें एंडोस्पर्म रहा ही नहीं है, जब एम्ब्रियो ग्रो हो रहा था उसी टाइम में सारा का सारा एम्ब्रियो एंडोस्पर्म कंज्यूम हो रहा है, तो एट दैट टाइम इट इज़ नोन एज अ नॉन एल्ब्यूमिनस। एग्जाम्पल है ग्राउंड नट। बट जब एल्ब्यूमिनस है तो उसमें एंडोस्पर्म थोड़ा सा रहता है, वो रह जाता है एंडोस्पर्म, और वो एंडोस्पर्म कब यूज़ होगा जबकि सीड जो है वो जर्मिनेट होगा, वो तब वो बचा हुआ एंडोस्पर्म यूज़ होगा। और उसके एग्जांपल भी आपको याद रखने हैं विच इज़ व्हीट, मेज, बार्ली, केस्टर एंड सनफ्लावर। ओके, कहीं सीड ऐसे भी होते हैं जैसे कि ब्लैक पेपर एंड बीट के जिसमें पेरिस्पर्म्स होते हैं। पेरिस्पर्म दैट मीन्स उसमें न्यूसेलस के रेमिनेंट। आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ न्यूसेलस व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द फीमेल गैमेट फॉर्मेशंस। ओके, तो फीमेल गैमेट फॉर्मेशन में मैंने आपको समझाया था दैट एम्ब्रियो सैक इज प्रेजेंट इन द न्यूसेलस। ओके, तो वो न्यूसेलस का थोड़ा अमाउंट भी उसमें अगर प्रेजेंट हो जाएगा, मतलब न्यूसेलस प्लस एंडोस्पर्म विच इज़ नोन एज द पेरिस्पर्म, याद रखना है आपको। नाउ इंटेग्यूमेंट, एम्ब्रियो सैक जो होता है
तो एम्ब्रियो सैक के अंदर जो आउटर मतलब कि समझ लो ओव्यूल है, ओव्यूल की आउटर वॉल है, उसको आपने बोला था इंटेग्यूमेंट। तो ओव्यूल में से तो हमें सीड बन रहा है, तो ओव्यूल की वॉल जो है उसमें से हमें क्या बनेगी, सीड वॉल और सीड कोट। और वो जो सीड कोट है वो हार्ड एंड प्रोटेक्टिव रहेगा आउटर लेयर। प्रोटेक्टिव और हार्ड रहने की क्यों ज़रूरत है, क्योंकि एनवायरमेंटल कंडीशन कभी भी हार्श हो सकती है, कभी हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी। सो उस सब से प्रोटेक्ट करने के लिए सीड कोट को हाई एंड प्रोटेक्टिव होना ज़रूरी है। देन माइक्रोपाइल रिमेन्स एज अ स्मॉल पोर ऑन अ सीड कोट। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि माइक्रोपाइल्स जो है वो एक पोर रहना चाहिए, क्योंकि वहाँ से आपको ऑक्सीजन एंड वाटर की एंट्री हो सके जब सीड जर्मिनेशन के लिए इसकी ज़रूरत हो। ओके, as seed mature, water content reduce and it will dry. Metabolic activity slow down and dormancy. Dormancy कब आती है, dormancy जनरली जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है, अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन होगी, एट दैट टाइम उसमें जो वाटर कंटेंट होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। और अगर वाटर कंटेंट नहीं मिलेगा तो उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लो हो जाएगी, और मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लो हो जाएगी तो इट विल डॉर्मेंट स्टेज, इट विल फॉर्म अ डॉर्मेंसी। ओके, बट अगर उसको फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन मिल रही है, देन आफ्टर दैट seed, that mature seed will germinate and form a new plant. Here you can see in the first figure, and that is you can see the two cotyledons which are highly thick. Why it is thick? Because it is food reserve. Okay, now here in the second figure you can see the seed coat, endosperm, that light color portion endosperm, and the second one is cotyledon, third one is cotyledon. Now hypocotyle, that means below the cotyledons. Okay, so you can see here, and this is the monocotyledon seed. Okay, monocotyledon seeds, as I told you, there are two major structure, that is the coleoptile and here coleoryza. So you have to understand this. Okay, now these two is not a true fruit, as it contain thalamus. थैलेमस आपको पता होना चाहिए, थैलेमस क्या है? थैलेमस इज एक्चुअली द रेसेप्टिकल, जहाँ पे सारे फ्लावर और फ्लोरल पार्ट अटैच होते हैं। आपको याद होना चाहिए, मैंने आपको फर्स्ट जो टॉपिक था उसमें समझाया था। ओके, तो यहाँ पे थैलेमस भी इन्वॉल्व होता है फ्रूट फॉर्मेशन के लिए, इसीलिए इसको हम ट्रू फ्रूट नहीं बोल सकते। ओके, सो वॉल ऑफ ओवरी, ओवरी मैच्योर होके क्या बनेगा, फ्रूट बनेगा। तो उसकी जो वॉल है उससे हम फ्रूट की वॉल बना सकते हैं, और वॉल ऑफ फ्रूट इज़ ऑल्सो नोन एज अ पेरिकार्प। ओके, याद रखना पेरिकार्प। अदर फ्लोरल पार्ट्स, अभी एक बार फ्रूट फॉर्मेशन हो जाएगा तो उसमें पेटल और सेपल्स का तो कुछ इतना फंक्शंस है नहीं, तो they are dried and fall off from the plant. Okay, now there are many types of fruits. First one is fleshy fruit. Fleshy, that means it contains juicy portion like guava, orange, mango, etc. But there are dry fruits too. Dry fruits मतलब कि उसमें वाटर कंटेंट जो है वो एक्चुअली कम रहेगा, और अगर वाटर कंटेंट कम है तो उसमें एग्जाम्पल कौन आएगा, ग्राउंड नट्स, मस्टर्ड एक्सेट्रा। वो आप इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, व्हाट आर फ्लैशी फ्रूट्स एंड व्हाट आर द ड्राई फ्रूट्स। ओके, मैनी फ्रूट्स हैव इवॉल्व मैकेनिज्म फॉर डिस्पर्सल ऑफ सीड। अभी यहाँ पे ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट क्यों है सीड डिस्पर्सल का, क्योंकि अगर सीड अच्छे से डिस्पर्स होगा तभी जाके न्यू प्लांट फॉर्म होगा सीड जर्मिनेशन होने के बाद। तो एवरी फ्रूट हैज़ अ मैकेनिज्म कि कैसे ये सीड है उसको हम डिस्पर्स कर सके, तो उसको इजीली डिस्पर्स करने के लिए उसके पास इवॉल्व मैकेनिज्म होनी चाहिए। फिर यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि वो ट्रू फ्रूट नहीं है, तो यहाँ पे एप्पल है, स्ट्रॉबेरी है और कैश्यू है, तो उसमें थैलेमस आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट। जनरली फ्रूट क्या है, फ्रूट इज़ द मैच्योरेशन ऑफ ओवरी। ओके, बट ओवरी के साथ साथ अगर उसमें थैलेमस भी इन्वॉल्व हो रहा है, देन इट इज़ नोन एज अ फॉल्स फ्रूट। But when fruit is only made up of ovary, it is known as a true fruit. Okay, now parthenocarpic fruit. In chapter number 1 you have already studied parthenogenesis. Parthenogenesis, that means fertilization के बिना आपका जाइगोट और एम्ब्रियो फॉर्म हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे
फ्रूट फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन इज़ पार्थेनोकार्पिक। ओके, एंड उसके एग्जांपल है बनाना। और याद रखना कि जब भी पार्थेनोकार्पिक फ्रूट हो गए ना तो दे आर सीडलेस। एंड यहाँ पे फर्टिलाइजेशन तो होगा नहीं, तो कौन फर्टिलाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? तो दे आर ओनली द ग्रोथ हार्मोन्स, नथिंग एल्स। ओके, सो एडवांटेजेस ऑफ सीड। सीड के सम एडवांटेजेस है यहाँ पे, दैट पोलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन आर इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर। जैसे हमें पता है कि पोलिनेशन वाटर से हो सकता है, बट विच इज़ वेरी रेयर इन केस। ओके, सो जनरली ऐसा लिखा है दैट इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर, बट सीड फॉर्मेशन इज़ डिपेंडेंट। मतलब सीड फॉर्म हो रहा है, सीड जर्मिनेट हो रहा है, तो उसके लिए वाटर नेसेसरी है। सेकंड पॉइंट इज सीड हैज़ बेटर अडेप्टिव स्ट्रेटजी फॉर डिस्पर्सल एंड कॉलोनाइजेशन ऑफ एरिया। मतलब अगर हम फ्रूट को तो इजीली डिस्पर्स कर नहीं सकते, बट सीड है वो तो जनरली स्मॉल साइज़ के होते हैं और इजीली एक जगह से दूसरी जगह फ्लो कर सकते हैं, तो उसके पास बेटर अडेप्टिव स्ट्रेटजीज है फॉर डिस्पर्सल। और अगर वो उड़ के एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं और अगर वो सॉइल फर्टाइल है तो वो पूरे एरिया को वो इजीली कॉलोनाइज कर सकता है। ओके, और वन मोर थिंग इज़ कि अगर कोई सीड है तो उसमें एंडोस्पर्म भी लेफ्ट होता है। ओके, तो वो एंडोस्पर्म की वजह से, वो जो एंडोस्पर्म है उसकी वजह से वो अच्छे से ग्रो कर पाएगा, अच्छे से जर्मिनेट कर पाएगा, जब तक कि वो जो सीड है उसमें से प्लांट फोटोसिंथेसिस करना स्टार्ट ना कर दे। Third point is being a product of sexual reproduction. As we know, plant are doing both type of reproduction, that is sexual reproduction and asexual reproduction. But generally seed is a final product of sexual reproduction. और अगर sexual reproduction है that means उसमें variation आने ही वाली है, और अगर variation आएगी तो it is good for us कि variation की वजह से हम ज़्यादा से ज़्यादा variety of fruit like hybrid form कर पाएंगे। ओके, एग्रीकल्चर के लिए भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अगर कुछ है तो वो सीड है, क्योंकि हम लोग सीड से ही पूरा प्लांट ग्रो करते हैं। डिहाइड्रेशन एंड डॉर्मेंसी क्रूशियल फॉर सीड स्टोरेज। हम कभी भी वाटर कंटेंट वाले सीड को स्टोर नहीं कर सकते, या हम ऐसा बोलते हैं कि अगर ड्राई सीड है वहाँ उसको वाटर से दूर रखना चाहिए, क्योंकि अगर उसको ड्राई कंडीशन में नहीं रखा, डिहाइड्रेटेड कंडीशन में नहीं रखा, तो वो इजीली जर्मिनेट हो जाएगा एंड वी कांट स्टोर इट। सो सीड को स्टोर करने के लिए डिहाइड्रेटेड एंड डॉर्मेंसी स्टेज नेसेसरी है। ओके, क्यों वो नेसेसरी है? इधर हमको फूड प्रोवाइड कर सके उसके थ्रू, या फिर उसमें से नेक्स्ट जनरेशन क्रॉप, मतलब उसको फिर से फार्मिंग करके हम नए जो सीड्स है वो ग्रो कर सके। ओके, now this point we have already discussed about the viability of pollen grains. Okay, so same topic here you have to learn, and that is after dispersal time duration of seed alive varies greatly. That means viability of seed जो होती है ना वो greatly different होती है. So for few months to several ईयर्स, मतलब कुछ दिन की हो सकती है, कुछ मंथ्स की हो सकती है, या उससे ज़्यादा ईयर्स की भी हो सकती है। यहाँ पे थोड़े से एग्जांपल है, दैट इज़ ल्यूपाइन, ल्यूपिनस आर्कटिकस फ्रॉम आर्कटिक टुंड्रा। ये जो आर्कटिक टुंड्रा है, आर्कटिक टुंड्रा में से मिला है ल्यूपिनस आर्कटिकस, और उसकी वायबिलिटी जो है ना वो मोर देन हंड्रेड्स ऑफ ईयर है, मतलब 100 ऑफ ईयर्स के बाद हमें मिला है ल्यूपिनस आर्कटिकस एंड इट इज़ स्टिल वायबल। ओके, second example is date palm Phoenix dictylifera, which is found from the King Herod Palace near Dead Sea. Dead Sea जो है वहाँ पे एक पैलेस है, वहाँ से हमें ये डेड पाम का सीड मिला है, और उसकी वायबिलिटी कितनी है? 2000 ईयर्स। ओके, 2000 ईयर्स के बाद भी उसकी वायबिलिटी रिमेन्स है। ओके, उसके अलावा ये जो है ऑर्किड फ्रूट है और सम पैरासाइटिक स्पीसीज लाइक ऑर्बेंके एंड स्ट्रिगा, तो वो जो है लार्ज नंबर में सीड प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, और अगर लार्ज नंबर में सीड प्रोड्यूस कर सकते हैं तो उसका ग्रोथ भी हम अच्छे से कर पाएंगे। नाउ लास्ट टॉपिक, एंड दिस इज ऑल अबाउट द एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियनी। हमने प्री फर्टिलाइजेशन पढ़ लिया, डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ लिया, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स भी पढ़ ली, जिसमें हमने एंडोस्पर्म, देन एम्ब्रियो, सीड वगैरह हमने देखा। ओके, अब लास्ट जो टॉपिक है, दिस इज़ अबाउट द एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियो। सो व्हाट इज़ एपोमिक्सिस? सो हियर इन फर्स्ट पॉइंट,
I am giving a definition, and that is the formation of seed without fertilization. Okay, never confuse yourself between the parthenogenic fruit and the apomixis. Parthenogenic, that means formation of fruit without fertilization, and apomixis is formation of seed without fertilization. और याद हो तो हमने पार्थेनोजेनिक फ्रूट को सीडलेस फ्रूट भी बोला था. वहाँ पे फ्रूट फॉर्मेशन होगा विदाउट सीड और यहाँ पे सीड फॉर्मेशन होगा. ओके और उसके एग्जाम्पल है ग्रासेस एंड एस्टेरेसी. ओके यहाँ पे क्या होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसकी मिमिक्री करके, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह होगा. ओके और उसमें एपोमिक्सिस कैसे हो सकता है, तो जैसे कि एग सेल है वो जनरली हैप्लॉइड होता है, तो एग सेल जो है वो हैप्लॉइड होने की जगह पे पहले से ही डिप्लॉइड होगा, और अगर डिप्लॉइड होगा तो उसके दूसरे एंड की तो मतलब दूसरे न्यूक्लियस की तो ज़रूरत है ही नहीं फॉर्मेशन होने के लिए. तो एग सेल अगर डिप्लॉइड है तो उसमें रिडक्शनल डिवीजन के बिना भी हम एम्ब्रियो डेवलप कर सकते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन. ओके नेक्स्ट पॉइंट, न्यूसेलर सेल्स सराउंडिंग एम्ब्रियो स्टार्ट डिवाइडिंग. मतलब समझ लो कि एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर है, एम्ब्रियो सैक के स्ट्रक्चर के आसपास सारा न्यूसेलस है, तो वो न्यूसेलर सेल्स जो है ना वो एम्ब्रियो सैक के अंदर जाते हैं, प्रोट्यूड करते हैं, और इसकी वजह से क्या होगा कि एक ही एम्ब्रियो में एक ही सीड में एक से ज़्यादा एम्ब्रियो आपको दिखने मिलेंगे, तो इसीलिए उसका नाम है पोली. पोली मतलब मोर देन वन, एंड एम्ब्रियोनिक मतलब मोर देन वन एम्ब्रियो, तो एक ही सीड में एक से ज़्यादा एम्ब्रियो दिखने मिलते हैं, तो एट दैट टाइम यू विल कॉल इट पोली एम्ब्रियोनी. और इसके एग्जाम्पल है सिट्रस फ्रूट एंड मैंगो. नाउ हाइब्रिड इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक. ओके सो हाइब्रिड वेराइटीज़, अभी आपको पता होगा कि हम लोग बहुत सारे टाइप्स की मैंगोज़ खाते हैं या फिर बहुत सारे टाइप के राइस भी होते हैं, तो वो सारे राइस जनरली नेचुरली नहीं प्रोड्यूस हो रहे, डैट इज़ एक्चुअली द हाइब्रिड. ओके तो हाइब्रिड वेराइटी क्यों कल्टीवेट कर रहे हैं, क्योंकि उसकी जो प्रोडक्टिविटी जो है ना वो हाई है, और हाई प्रोडक्टिविटी से हम सबको ईजिली फूड प्रोवाइड भी कर सकते हैं, और उसमें से हम ज़्यादा अच्छा न्यूट्रिएंट भी ऑब्टेन कर सकते हैं. ओके बट वन डिसएडवांटेजेस इज़ दैट हाइब्रिड सीड्स जो है ना वो एक ही बार यूज़ कर सकते हैं, और इसी वजह से वो कॉस्टली है. क्यों ऐसा एक ही बार क्यों यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हाइब्रिड मतलब दो अलग अलग स्पीसीज़ या जेनेरा के इंडिविजुअल्स के बीच में क्रॉसिंग किया है. अगर उसका फिर से फर्टिलाइजेशन होगा, ओके तो एट दैट टाइम हाइब्रिड कैरेक्टरिस्टिक जो हमने डिज़ायर कैरेक्टरिस्टिक्स ऐड की है वो तो लॉस हो जाएगी. तो अगर वो लॉस हो जाएगी तो हमें हाइब्रिड ही नहीं मिलेगा, इसीलिए हाइब्रिड सीड को हम एक ही बार यूज़ कर सकते हैं. ओके लास्ट सेकंड पॉइंट इज़ इफ़ हाइब्रिड मेड इन एपोमिक्स, मतलब अगर समझ लो कि हमने एपोमिक्सिस करके हाइब्रिड बनाया, मतलब कि एग ऑलरेडी 2n है, ठीक है ना. अगर एग ही 2n है तो उसमें बाहर से तो कोई न्यूक्लियाई आनी है नहीं, और बाहर से कोई न्यूक्लियाई नहीं आएगी तो वहाँ पे ना सेग्रीगेशन होगा ना कुछ चेंज होगा, तो इसी वजह से हाइब्रिड जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो रिटेन रहेगी, और हम एक ही सीड को मतलब एक ही बार सीड खरीद के उसका रीयूज़ कर सकते हैं, और हमें नए सीड खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तो ये एपोमिक्सिस की इम्पॉर्टेंट है हाइब्रिड सीड डेवलपमेंट में, और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रहे हैं. तो यहाँ पे आपका ये जो चैप्टर नंबर 2 है दैट इज़ रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट कंप्लीट होता है. आप एक बार अच्छे से पढ़ें, अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट करके. ओके थैंक यू.